Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you. In this week, I am going to tell you about drafting geometry. So, at the end of this lecture, you should be able to learn about the geometric form terminology, the two-dimensional geometric form, as well as the three-dimensional geometric form, and finally, we will discuss some different construction methods of the basic geometric form using the drafting instruments. ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री बेसिकली जो मशीन पार्ट्स एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं यूजिंग द ज्योमेट्रिक शेप्स एंड दे आर यूजिंग डिफरेंट रेंज लाइक स्केयर्स and the cylinders or to the complex irregular curves. So geometric construction are the basically methods that can be used to draw the various geometric shapes or to perform the drafting task that is basically related to the geometry of the product representation as well as the design. So construction of primitive geometry forms like points, lines and planes etc. that serves a building block for more complicated geometric shapes. So the proper use of geometric construction is really important for the basic understanding of plane geometry. तो किसी भी ड्राफ्टिंग कंस्ट्रक्शन का जो मेन प्रॉपर यूज है वो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेन ज्योमेट्री. तो उसके लिए प्लेन ज्योमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है. So plane geometry क्या है? Plane geometry is basically the most basic definition in the geometry of two-dimensional objects. तो two-dimensional objects के अंदर जो most basic definition है उसको हम plane geometry के साथ लिंक करते हैं. So in drawing, these construction accuracy is the most important element. तो ड्राइंग के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्यूरेसी जो है वो बहुत मायने रखती है और उसके लिए जो पेंसिल है बेसिकली आपने वो एच या 3HT यूज़ करनी है फ्रॉम मीडियम टू हार्ड लेड. जो उसकी शार्प है वो मीडियम टू हार्ड लेड होना चाहिए और जो कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं लाइक एक्सट्रीमली लाइट सो द लाइट दे कैन हैंडल टू सीन when your drawing is held at the arm's length. तो construction line को extremely light से आपने draw करना है during the construction of your geometry. So draw all the given and the required line as a thin but dark. So यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई हुई है कि ये एक ज्योमेट्री है लाइट जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स मतलब यूज की हुई नज़र आ रही हैं. लाइट पॉइंट्स हैं, आर्ट्स हैं, lines, curved line, ellipse surface, hyperbolic surface, tangent, helix and so on. तो किसी भी ज्योमेट्री को जब आप किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए कोई भी यूज करते हैं शेप लाइक पॉइंट सर्कल्स आर्क तो वो सब जो है आपके ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री के टॉपिक के अंदर कवर की जाती हैं पॉइंट्स. So what are the geometric form? Basically to communicate the effectively or a manual to or a CAD drafter must be able to use the geometric terminology correctly. So geometric terminology is commonly used in the most field of drafting and the design field. So geometric construction are either two-dimensional or the three-dimensional. तो जो geometric forms हैं वो आपके पास two-dimensional भी हो सकती हैं और वो three-dimensional भी हो सकती हैं. लाइक यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं. सिमिलरली यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन लाइंस हैं हमारे पास, कुछ एक्यूट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स एंगल्स हैं that is basically more than 90 degree and there are some other forms like equilateral triangle, isosceles triangle and so on. So these are all are the geometric forms. So here you will see some basic two-dimensional forms with the variation of circles, triangles, squares, polygons, ellipse, and the free form. So the two-dimensional engineering drawing constructed with the combination of straight lines, arcs, circles and curves. तो ये आपके पास एक let's say प्रोडक्ट है. इस एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़ाहिर है जब आपने उसकी ड्राइंग बनानी है उस ड्राइंग के अंदर जो आपकी टूल यूज़ हो रहे हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिक फॉर्म जो यूज़ हो रही हैं उसके अंदर आपके पास लाइंस हैं. इसके अंदर देखें लाइंस ड्रा की हुई हैं, आर्क्स हैं, स्ट्रेट लाइन.
जो स्ट्रेट लाइंस हैं, सर्कल्स हैं, कर्व्स हैं, तो ये सब जो फॉर्म्स हैं उन्होंने मिलके इस पर्टिकुलर एक शेप को, इस फीचर को बिल्ड किया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं विद विड्थ, डेप्थ एंड हाइट, और आल्सो हंड्रेड ऑफ द डिफरेंट फॉर्म जो है विद वेरिएशन ऑफ द अबव जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए फिगर में, उसके साथ पॉसिबल्स हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। So now let's move to a geometric construction. So first of all, we will discuss a point. Point is basically the non-dimensional geometrical element and uttered by the intersection of the various lines. Like अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास ये shapes है, इस shapes के अंदर जो different ये points आपको नजर आ रहे हैं, जो कि multiple lines के मिलने से बन रहे हैं, तो इनको हम points का नाम देते हैं। सेकंड नंबर पे है जी हमारे पास लाइंस। लाइन बेसिकली द वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है जो कि अटर की जाती है बाय मूविंग द पॉइंट्स इन द वेरियस डायरेक्शंस लाइक दिस। ये अगर आपके पास पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हुए जब इनको ज्वाइन करेंगे तो जो आपके पास शेप बन रही है वो सब हमारे पास लाइंस के अंदर आती है। थर्ड नंबर पे है जी हमारे पास प्लेन्स। प्लेन इज बेसिकली द अटर्ड बाय एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स or the connection of one point and the one line. A plane is basically always in the 2D or two-dimensional. So when the number of elements forming a plane increases, shape and the names will change. So जैसे जैसे आपके planes increase होते जाएंगे वैसे वैसे जो आपकी ज्योमेट्री की शेप है वो चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं, लाइक रेक्टेंगल्स हैं, पैरेललोग्राम है, ट्राइएंगल्स हैं, स्टेयर्स हैं, सर्कल्स हैं एंड सो ऑन। So now let's discuss some conventional geometric construction methods like जो आपको अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर different kinds of प्रोडक्ट और उनकी ड्राइंग बनाने के लिए यूज होंगे। सो लाइक आप बाइसेक्टिंग कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कैसे ड्रा करते हैं, पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करते हैं, डिविजन्स कैसे करते हैं आप अपनी लाइंस की। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। सो टू ड्रा अ बाइसेक्ट ऑफ अ गिवन लाइन, तो किसी भी एक लाइन के ऊपर अगर आपने बाइसेक्ट ड्रा करना है तो आप कैसे ड्रा करते हैं, उसके लिए आप एक सिमुलेटेड जो वीडियो है उसको आप देखें। तो पहले आप स्विंग करेंगे टू आर्स को हैविंग द रेडियस दैट इज ग्रेटर देन the one half of the line with the center at the end of the line, then join the intersection of points of the arc with the line and locate the midpoint. Perpendicular bisector. Another method, so first of all, let's say you have to draw a line with a measurement of 5 centimeter and then draw a point, let's say A at the line, then place the point of a compass at A and draw an arc that passes through the line at point P and Q. Placing the compass at point A and then drawing an arc that is basically passing through the 2 points that is P and Q. And then place the point of a compass at point P and then draw an arc that basically pass through the Q. Now you have to place the compass at point P and then draw an arc that pass through the Q. And then again repeat the same step, but this time you have to place your compass at point Q and then draw an arc that pass through P and the matches the arc at point R. Then by using the ruler join the A and R, so an angle R and Q is 90 degree. So in this way आप जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा कर सकते हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे होगा। The next one is the line perpendicular to a point in a line. अब हम एक रिवॉल्व मेथड के थ्रू देखेंगे कि आप परपेंडिकुलर लाइन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कैसे ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल place an opposite edge of a 45-degree triangle up to the given line, then support the triangle with another one and flip the first one side and then pass a line that passes through the point C and then finally draw the line. And the other method is the adjacent side method. In this method, you have to first place a line at adjacent edge of a 45-degree triangle up to the given line, then support with the other one and simply slide the first triangle until the another adjacent edge pass through the given point.
and then finally draw the line. And finally, here is another method, that is by using the compass method. तो आप एक R1 की आर्क ड्रा करेंगे जो आप सी पॉइंट पे रख के ड्रा करेंगे, और आपके पास एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आ जाएंगे, दैट इज ए एंड बी. अब ए और बी को आप आपस में कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग 2R, दैट इज R2. तो आपके पास एक पॉइंट डी आ जाएगा उन दोनों की कॉम्बिनेशन जहाँ पे वो पॉइंट मिलेंगे, फिर आप फाइनली एक लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे. Another method is the line perpendicular to a given line through a point outside the line. अब हम एक आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर हम सबसे पहले adjacent साइड मेथड को देखेंगे. तो अगेन आप यहाँ पे अपने सेट स्टेयर को प्लेस करेंगे 45 डिग्री ट्राइंगल अप टू द गिवन लाइन, देन आप उसको स्पॉट करेंगे अदर के साथ, और देन सिंपली आप उसे स्लाइड करेंगे अंटिल जो आपका पॉइंट है वहां तक वो उसे टच करे, और फिर सिंपली आप यहाँ पे लाइन ड्रा कर देंगे. Now let's discuss the compass method. आप यहाँ पे सबसे पहले एक R1 रेडियस की एक आर्क ड्रा करेंगे जो ए और बी पॉइंट के ऊपर लाइन को कट करेगी. फिर आप पॉइंट ए के ऊपर रख के एक R2 की आर्क ड्रा करेंगे, और फिर बी पे रख के R2 रेडियस की एक आर्क ड्रा करेंगे, और जो पॉइंट डी आएगा उसको आप पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ, और आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन जो वो ड्रा हो जाएगी. So now let's discuss the line parallel to a given line through a given point. तो मैं यहाँ पे अपने सेट स्टेयर को प्लेस करूँगा, फिर उसे सपोर्ट करूँगा अदर ट्राइंगल के साथ, फिर उसे सिंपली स्लाइड करूँगा अंटिल कि मेरे पास जो पॉइंट सी है वो उसके साथ क्रॉस करे, और फिर मैं सिंपली एक लाइन ड्रा कर दूँगा जो कि पैरेलल हो रही मेरी पहले वाली लाइन के साथ. नेक्स्ट है जी लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस, लेट्स से आर. तो आप एक आर रेडियस की लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद आप सेकंड मतलब कि अपनी जो आपके पास सेट स्टेयर है उसको प्लेस करते हुए उस ड्रा आर्क के साथ उसको टच करते हुए अपनी एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि पैरेलल होगी इन दोनों पॉइंट के साथ. कोई भी एक आप कन्वीनियंट के लिए रेडियस ले सकते हैं, और उसकी मदद से आप अपनी लाइन को पैरेलल ड्रा कर सकते हैं. Here is again representation of the previous method. आप यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, आप ये लाइन आपने ड्रा की, फिर उस लाइन को ड्रा करने के बाद आप किसी भी एक कन्वीनियंट रेडियस के साथ एक सर्कल ड्रा करेंगे. सिमिलरली फिर आपने एक अगेन सर्कल ड्रा करना है, और उस सर्कल को ड्रा करने के बाद आप यहाँ पे लाइन को इस सर्कल के इस पॉइंट के साथ टच करते हुए पास करेंगे, तो आपके पास टू पैरेलल लाइन जो है वो ड्रा हो जाएंगी. Now, if you want to divide a line into equal parts, then simply first draw the line, and then after draw the line आप क्या करेंगे, आप इसको कन्वीनियंट किसी भी एक कन्वीनियंट एंगल के ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, और उस लाइन को ड्रा करने के बाद आप उसको इक्वल डिवीजन के अंदर डिवाइड कर देंगे. आफ्टर डिवाइडिंग द ईच डिवीजन ऑफ द लाइन आप पॉइंट्स को इन दो पॉइंट्स को एट पॉइंट ए एंड बी आपस में ज्वाइन कर देंगे. देन आप अपने यूजिंग द टी स्टेयर और सेट स्टेयर अपने इस तरीके से लाइन करेंगे कि वो पैरेलल हो इस पर्टिकुलर ए बी लाइन के साथ, एंड देन सिंपली आप हर वो पॉइंट जो आपने डिवाइड किया हुआ था लाइन के साथ उसकी मदद से आप इस लाइन को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स. अगर आप किसी बाइसेक्ट को गिवन एंगल के ऊपर कट करना चाहते हैं तो उसका मेथड देखते हैं. यहाँ पे आपने एक R1 रेडियस सर्कल ड्रा किया, फिर आपने इन आर को जो ए बी लाइन और ए सी लाइन के साथ टच कर रही थी उसके ऊपर रखते हुए R2 के रेडियस के साथ एक आपने इंटरसेक्शन पॉइंट लिया, एंड देन आपने उस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हुए एक बाइसेक्ट जो है गिवन एंगल का वो ड्रा कर दिया. Okay, now let's draw a line at an angle of 15 degree with horizontal. तो मैं यहाँ पे एक टी स्टेयर जो है वो प्लेस करूँगा, और फिर उसके बाद सेट स्टेयर की मदद से यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल ड्रा करूँगा बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्शन मेथड.
ये जो आपके पास लाइन ड्रा हो रही वो 15 डिग्री एंगल की हो रही। सिमिलरली आप सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप 15 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा कर सकते हैं बाय यूजिंग टी एंड द सेट स्क्वायर. So constructing an angle of 60 degree by using the compass method. So let's first draw the arm, let's say P and Q, and then place the point of a compass at point P and draw the arc that is basically passed through the point Q. Then place the point of compass at point Q and draw another arc that is passing through the point P. So let this arc cut the arc drawn in the step 2 at point R. After that, join the P to R and the angle is QPR is 60 degree. So you can also draw a line that is making a 30 degree angle with the given line through a point using that set square method. In this way जो है आप 30 degree angle draw कर सकते हैं. There is another method. So constructing a 30 degree angle using the compass method. So we know that 1 by 2 times 60 degree is basically equal to the 30 degree. So to construct an angle of 30 degree, first construct a 60 degree angle and then bisect it. तो ये प्रीवियस केस था जिसके अंदर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया था. अब हम इसको बाइसेक्ट ड्रा करेंगे और वो बेसिकली 30 डिग्री एंगल पे होगा. तो बाइसेक्ट के लिए क्या करेंगे, हम एक पॉइंट पी के ऊपर कंपास रखेंगे और ड्रा करेंगे एट आर्क जो इंटरसेक्ट करेंगी बेसिकली क्यू पी क्यू टू एट पॉइंट एम एंड इंटरसेक्ट द पी आर एट पॉइंट एन. ठीक है, तो ये एम एंड एन के ऊपर हमने एक आर ड्रा की. अब हम एक दफ़ा कंपास को एम पॉइंट पे रख के आर ड्रा करेंगे और एक दफ़ा एन पॉइंट पे रख के आर को ड्रा करेंगे. एंड देन ये जो हमारे पास पॉइंट टी हो रहा है इन दोनों आर के इंटरसेक्शन के पास, वो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल है दैट इज 30 डिग्री. सो अगर आपने 75 डिग्री लाइन ड्रा करनी है विद हॉरिजॉन्टल, आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन को रखते हुए मतलब यूजिंग द टी स्टेयर एंड सेट स्टेयर आप 75 डिग्री का एंगल ड्रा कर सकते हैं. And this one the second method. So the line making the 75 degree with a given line through a given point using a set stair. तो ये point है हमारे पास C जो कि हमें given है. अब हमने एक line draw करनी है जो 75 डिग्री हो रही और वो इस point के साथ टच करती हुई गुजरेगी. Similarly आपके पास second method है like this. So now draw a line at an angle of 105 degree with horizontal. So by using your T and set scale, you can draw any kind of angle with 15 degree increment like 15, 30, 45, 60, 75, 90 again and so on. तो आप टी स्केयर और सेट स्केयर को यूज करते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल जो है वो ड्रा कर सकते हैं जो कि 15 डिग्री इंक्रीमेंट के साथ होंगे. So to bottom of the triangle in each case is resisting on the blade of the T stair. 24 of 15 degree sectors are possible with just these two triangles used singly or in combination. तो आप सिंगल या फिर कम्बिनेशन के साथ ड्रा करते हुए हर 15 डिग्री के साथ डिफरेंट 24 कम्बिनेशन जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं बाय यूजिंग द टी स्टेयर एंड द सेट स्टेयर मेथड. और अदर जो आपके पास एंगल है लेट्स से 33 डिग्री 33.5 एंड सो ऑन, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा. So let's talk about the construction of triangles.
अगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ और फिर मैं अपनी कंपास को इस लाइन तक ओपन करूँगा और फर्स्ट पॉइंट पे रखते हुए एक लाइन आर्क ड्रा करूँगा। फिर मैं अपनी कंपास को सेकंड पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रा करूँगा और देन मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँगा, तो मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी जो कि 60 डिग्री एंगल के ऊपर होगी। सिमिलरली अगर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जो लेट्स से इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, तो लेट्स से कि मेरे पास ट्राइंगल की जो लाइन की विड्थ है वो ये गिवन है। मैं इस सी पॉइंट के ऊपर कंपास बी तक खोल के ड्रा करूँगा, फिर मैं अपने कंपास को ए पॉइंट तक जितनी मुझे रिक्वायर्ड लाइन चाहिए उसके मुताबिक खोलते हुए एक आर्क ड्रा करूँगा और देन मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँगा, तो ये मेरे पास एक सिंपल ट्राइंगल जो वो ड्रा हो जाएगी बाय द गिवन लाइन विथ जितनी भी लाइन की डायमेंशन होगी उसके मुताबिक आपकी ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी। अगर आपने राइट ट्राइंगल ड्रा करनी है तो आप अपने पी पॉइंट के ऊपर रख के आर्क ड्रा करेंगे और जो कि एम को टच करेगी और फिर एम के ऊपर रखते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि आर पॉइंट बनाएगी और फिर आर के ऊपर रखते हुए एक पॉइंट ड्रा करेंगे जो कि एन पॉइंट पे आके मिलेगा। और इस तरीके से आप एन और आर के ऊपर कंपास रखते हुए दो पॉइंट ड्रा करेंगे तो आपके पास एक राइट ट्राइंगल जो है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और इस पॉइंट को टी और क्यू को मिलाएंगे तो आपके पास राइट ट्राइंगल बन जाएगी। So let's move to construction of stair. तो मल्टीपल मेथड है आपके स्टेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं और 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। सिमिलरली वही एंगल हम अदर वे में ड्रा करेंगे और फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए हम जो स्टेयर है वो बना लेंगे। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की कंस्ट्रक्शन के भी डिफरेंट मेथड है, तो हम यहाँ पे एक मेथड डिस्कस करते हैं कि मैं पहले एक रिक्वायर्ड डायामीटर का एक सर्कल ड्रा करूँगा। सर्कल को ड्रा करने के बाद मैं एक 18 डिग्री का एंगल ड्रा करूँगा। 18 डिग्री के एंगल के बाद जो पॉइंट मेरे पास ए आएगा उस ए पॉइंट पे रखते हुए मैं एक लाइन ड्रा करूँगा जो कि मेरी ये पॉइंट बी को मिलेगी। अब मैं अपनी कंपास को ए से बी तक खोलते हुए यहाँ से एक निशान मार्क ड्रा करूँगा, फिर मैं अपने कंपास को बी पे रखते हुए एक पॉइंट ड्रा करूँगा। सिमिलरली मैं अदर ये सारे पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे, देन मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास पेंटागन जो वो बन जाएगी। अदर जो मेथड है वो इस तरीके से रिलेट से कि मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस की और उस डिस्टेंस के ऊपर मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। देन मैं उसके सेंटर पॉइंट से रख के एक जो बाइसेक्ट है बी और सी का वो ड्रा कर लूँगा और अब मैं यहाँ पे मेरे पास एक बाइसेक्ट ए सी का बी हो गया और बी सी का ई आ गया। अब मैं ई को डी तक रखते हुए या डी को ई तक रखते हुए एक आर्क मतलब एक रेडियस जो है वो मेजर करूँगा और उस पॉइंट को रखते हुए मैं एक आर्क ड्रा करूँगा जो कि अदर एफ के साथ जाके मिलेगी और उस एफ के साथ मैं एक रेडियस लूँगा और उस रेडियस को लेते हुए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करूँगा। तो जब मैं अपनी इस पॉइंट तक कंपास खोलूँगा तो मैं यहाँ पे रखते हुए ये एक पॉइंट ड्रा करूँगा। अब मैं कंपास को यहाँ पे प्लेस करते हुए लाइन जो है आर्क ड्रा करूँगा और सिमिलरली मैं अदर कंपास को यहाँ पे प्लेस करते हुए आर्क ड्रा करूँगा, देन यहाँ पे प्लेस करते हुए ये आर्क ड्रा करूँगा और सिंपली मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँगा। मेरे पास पेंटागन जो है वो बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपने हेक्सागन ड्रा करना है तो आप अपने सेट स्क्वायर को यूज़ करते हुए ड्रा कर सकते हैं। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आप उसको प्लेस करेंगे और आप इस तरीके से लाइंस को ड्रा कर लेंगे फोर साइड, तो देन आपके पास जो है एक हेक्सागन वो ड्रा हो जाएगा। अगर आपने ओटागन ड्रा करना है तो मैं पहले एक आप स्केल ड्रा करें, स्केल ड्रा करने के बाद उसका आप सेंटर पॉइंट ले लें। इस सेंटर पॉइंट के बाद आप क्या करें फोर साइड्स के ऊपर डॉट्स लगाएं और अपने फिर कंपास को ओपन करते हुए आर्क ड्रा करें लाइक दिस एंड देन इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो आपके पास ओटागन बन जाएगा। Now let's discuss the construction of circles, tangents, arc and the curves. अगर आपने एक सर्कल ड्रा करना है जो कि 3 पॉइंट के ऊपर ज्वाइन होगा मिलना चाहिए, लेट्स से ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं तो मैं इन पॉइंट्स को पहले आपस में ज्वाइन करूँगा।
लाइक दिस, देन मैं इन पॉइंट्स का बाइसेक्ट निकालूंगा और सिमिलरली मैं इन पॉइंट्स का बाइसेक्ट निकाल लूंगा। अब इन दोनों के बाइसेक्ट को मैं आपस में ज्वाइन करते हुए मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा एच। अब इस पॉइंट एच के ऊपर रखते हुए मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा जो कि इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन और जो टेन से कट करता हुआ गुजरेगा। तो ये मेरे पास मेथड है सर्कल को 3 पॉइंट्स के ऊपर ड्रा करने का। अगर आप कोई टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाहते हैं गिवन आर के ऊपर और अ सर्कल यूजिंग द सेट स्टेयर, तो ये हमारे पास एक केस है जिसके अंदर गिवन पॉइंट जो है वो बेसिकली आर के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज सी पॉइंट। तो आप इस तरीके से अपने लाइन को मतलब टेंजेंट लाइन को ड्रा कर सकते हैं एट पॉइंट सी। केस टू ये है कि हमारा जो पॉइंट सी है वो आर के ऊपर ड्रा लाई नहीं कर रहा, वो उससे बाहर है। उसके ड्रा करने के मेथड जो है वो इस तरीके से है। पहले हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं कि सेट स्टेट की मदद से टेंजेंट पॉइंट ड्रा करेंगे आर पर, उस पॉइंट को फिर सी के साथ मिला देंगे। और सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो इस तरह से है कि हम अगेन सेट स्टेट को यूज करने से पहले एक पॉइंट सी को अपने सेंटर पॉइंट तक मिलाएंगे और देन आर के थ्रू उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और फिर हम जो पॉइंट हमारा उस आर के ऊपर टच करता हुआ गुजरेगा उस पॉइंट तक अपने उस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये कंपास का मेथड है यूजिंग अ कंपास ड्राइंग अ टेंजेंट आर्क। दैट्स ये मेरे पास एक आर्क है और इस पॉइंट तो मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ टेंजेंसी के लिए, उसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा और देन मैं अपनी कंपास की मदद से उसको इक्वल रेडियस जो है पॉइंट्स के अंदर ड्रा करूँगा, डिवाइड करूँगा। देन सिंपली मैं बाइसेक्ट लूँगा और बाइसेक्ट लेते हुए मैं यहाँ पे एक आर्क जो है वो ड्रा कर दूँगा। So the key concept related to the tangent curve to the given line is to draw a tangent arc, or you can say a specified radius r. It is necessary to locate the two things, that is its center point, that is C, that is basically placed outside the line for a distance equal to a radius of an arc. And the second point is the start and the end point, or you can say a tangent point of the arc. So it is basically lies on a given line in a way that the line pass through this point and the center of an arc be perpendicular to the given line. So here you will see a representation, visual representation of a tangent curve to the given line कि ये जो दो points हैं ये आपके इस line के साथ इसके ऊपर बेसिकली ड्रा किए हुए, मतलब ये जो आर्क है जो ये हमारे पास टेंजेंट कर्व है वो इन पॉइंट्स के थ्रू ड्रा की जाएगी। लेकिन जो इसका ये आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है, ये आप ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ले सकते हैं। और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो बेसिकली इन आर्क से बाहर, मतलब इन लाइंस के बाहर जो है वो ड्रा लाई करेगा एट एन रेडियस, जो भी इस आर्क का रेडियस होगा उस पॉइंट तक आप यहाँ तक ये कह सकते हैं कि ये लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट तक ये जो मेरे पास लाइन है ये मेरे पास इसका रेडियस है। सो लोकेट द टेंजेंट पॉइंट, you can use this method. तो ये दो आपके पास टेंजेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आप इस सेंटर पॉइंट पे रखते हुए आप अपनी आर्क को ड्रा कर लेंगे। So the key concept related to the tangent curve to the given curves is the tangent point lies on the line that is basically passed through the center of each arc, or you can say a or circle. लेट्स से ये मेरे पास एक सर्कल है R1 का और एक R2 का, तो इन दोनों का जो टेंजेंट पॉइंट है वो इनके सेंटर पॉइंट से होते हुए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और यू कैन से अगर मैं एक और सर्कल ड्रा करूँ R3 और यहाँ पे जो उसका सेंटर पॉइंट है वो आपको इस पॉइंट के साथ हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है R1 के साथ। सिमिलरली अगर मैं R2 पॉइंट को R3 के साथ ज्वाइन करूँ तो इस तरीके से मेरे पास
टेंजेंट पॉइंट जो है वो ड्रा हो जाएगा. So to draw the tangent curve of a specified radius, let's say r, it is necessary to locate the center point and the start and end point of the tangent points of the arc. So the case one, let's say external case, अगर आपकी कोई आर्क जो है वो एक पॉइंट सी के साथ उसने कनेक्ट होना है और ये एक इंटरनल केस है. इस पर्टिकुलर केस में जो आपका मेन सेंटर पॉइंट जो है वो उससे बाहर है, लाइक दिस. और सेटिंग केस है हमारे पास इंटरनल, जिसके अंदर आर्ट आपकी इस तरीके से ड्रा होगी. तो सेटिंग वाले केस के अंदर जो आपका पॉइंट है वो बेसिकली इंटरनल है, आर्ट के अंदर लाई कर रहा है. और फर्स्ट वाले केस में आपका जो पॉइंट है वो इस आर्ट से बाहर है, मतलब ये कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नल पॉइंट है. बेसिकली ये आपके पास एक रिक्वायर्ड शेप बन रही है और इसके अंदर आपकी जो रिक्वायर्ड शेप है वो कुछ इस तरीके से. सो एक्सटर्नल टेंजेंट आर्ट को ड्रा करने के लिए यहाँ पे एक सिमुलेटेड वीडियो है, आप इसको देखें. हम एक आर्ट लगाएंगे आर प्लस आर वन टी, और फिर इसी तरीके से एट पॉइंट सी टू पे रखते हुए आर प्लस आर टू टी, और फिर आपके पास एट पॉइंट सी आ जाएगा. उस पॉइंट सी से आप दो टेंजेंट पॉइंट्स ड्रा करेंगे अपने आर पे, और फिर आप एक आर रेडियस की आर्ट जो है वो ड्रा कर लेंगे. यहाँ पे जैसे आपको एक अदर केस दिखाया हुआ है, अगेन दो सर्कल्स हैं और उनके दरमियान आपने जो है ये आर्ट को ड्रा किया है. लेट्स से ये मेरे पास जो सर्कल है इसका डाया 1.25 और एट का 1.5 है, और जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सर्कल सेंटर टू सेंटर पॉइंट इज 2.5. मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगा जो कि R1 प्लस R3 की होगी, और जो R3 है वो मेरे पास 1 इंच है. इसी तरीके से मैं R2 प्लस R3 का एक पॉइंट लूँगा, तो ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास 8 पॉइंट्स के रखते हुए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स ड्रा करूँगा, और फिर कंपास को इस पॉइंट तक खोलते हुए अपनी आर्क को ड्रा कर लूँगा. अब हमारे पास एक इंटरनल केस है और ये उसकी एग्जांपल है. इसके अंदर हम माइनस करेंगे बेसिकली. एक्सटर्नल की सूरत में आप प्लस करेंगे, इंटरनल की सूरत में सिर्फ आपने माइनस करना है. और ये सेकंड टाइप है इंटरनल की. इसके अंदर आप एक में माइनस करेंगे और एक में प्लस करेंगे. इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कुछ डिफरेंट वे में बनेगी. तो यहाँ पे टू सर्कल्स के दरमियान टेंजेंट आर जो है वो ड्रा की हुई है. जैसे मेरे पास दो सर्कल हैं R1 R2 रेडियस के, तो मैं R3 माइनस R1 करते हुए R3 की वैल्यू भी गिवन है, एक आर्क ड्रा करूँगा. फिर मैं R3 माइनस R2 के साथ एक पॉइंट लूँगा, और इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए मैं दो टेंजेंट पॉइंट्स ड्रा करूँगा और इन पॉइंट्स तक अपनी इस आर्क को ड्रा करूँगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम स्ट्राइप एंड द इन स्ट्राइप. जब आप ड्रा करते हैं ड्राइंग पॉलीगॉन की, और उसके अंदर जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं अक्रॉस द फ्लैट्स, द पॉलीगॉन इज बेसिकली द circumscribe around the circle. Or when the drawing a polygon given the distance across the corner, then the polygon is inscribe the circle like this. तो circumscribe की सूरत में जो डिस्टेंस है आप इसके फ्लैट पॉइंट से मेजर करते हैं, और inscribe की सूरत में आप इसके इन कॉर्नर पॉइंट के साथ मेजर करते हैं डिस्टेंस को, और जो टेंस है या रेडियस. तो अगर आपने circumscribe सर्कल ड्रा करनी है तो ये उसकी एक इलस्ट्रेशन है कि आप सबसे पहले एक वर्टस टू वर्टस डिस्टेंस लेंगे, लेट्स से डी, और इन दो पॉइंट्स पे रखते हुए आप इसका बाइसेक्ट ले लेंगे. फिर आप एक सर्कल ड्रा करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, और फिर आपके पास सर्कल स्ट्राइप सर्कल जो है वो बन जाएगी. इन स्ट्राइप सर्कल के लिए लेट्स से आप डिस्टेंस जो है वो बिटवीन द फ्लैट्स में ये करना है आपने, लाइक दिस. ये मेरे पास इन स्ट्राइप सर्कल बन गया.
सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो है वो इस तरह से है कि आप सबसे पहले अपनी रिक्वायर्ड स्पेस जो है उसको कैलकुलेट करें, फिर आप लेआउट ड्रा करें अपनी ड्राइंग स्टेप्स का, फिर आप मैच करें कंस्ट्रक्शन तकनीक्स को टू ईच ड्राइंग स्टेप्स, and then finally अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करें एंड ऑलवेज यूज द कंस्ट्रक्शन लाइन इफ द इंफॉर्मेशन टू ड्रा अ लाइन और कर्व इज इनकम्प्लीट। अब आप लाजमी कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रा करें ताकि आप अपनी रिक्वायर्ड ड्राफ्टिंग की शेप को कंप्लीट कर सकें, बना सकें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।